Thank you all the media fraternity for accepting our request to media coverage for organization of 25th Bharat Rang Mahotsav 2026, the world largest international theatre festival in India at Itanagar. The Department of Art and Culture, Government of Arunachal Pradesh, in collaboration with the National School of Drama, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi, is going to organize 25th Bharat Rang Mahotsav 2026 at Itanagar, a series of theatre at Dorjikandu Auditorium Hall of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Itanagar, and Dorjikandu State Convention Center at Indira Gandhi Park, Itanagar will be performed by the artists of the National School of Drama, New Delhi, with effect from 30 January 2026 to 3rd February 2026. The inaugural theatre performance at Dorjikandu Auditorium Hall of Arunachal Pradesh Legislative Assembly will be graced by Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Shri Tesam Pongte as the Chief Guest, and Shri Toko Tatung, Honorable MLA 16th Actually Assembly Constituency, as guest of honor on 30 January 2026 at 16 hours. The title, Money, Money, Money greater than sunshine, sweeter than money, honey, money, money, money greater than sunshine, sweeter than honey, will be the inaugural theatre performance. Thereafter, a series of theatre will be performed at Dorjikandu State Convention Center, Itanagar, with effect from 31st January 2026 to 3rd February 2026 from 1700 hours every day. The Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Chonamin, Shri Srimati Dangsalu Fall, Honorable Minister of Cultural Affairs, and Shri Manish Kumar Gupta IAS, Learned Chief Secretary, has consented to grace the closing theatre performance on 33 February 2026. All the logistic arrangement, transportations, everything is arranged by Department of Art and Culture, and the theatre will be performed by the National School of Drama, New Delhi. And the detailed agenda of the program will be briefed by our officer from the National School of Drama, Shri Riken Ngomle, Assistant Professor in NSD. Thank you. Hello everyone. I am very happy. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल स्कूल ड्रामा को। ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर नेशनल स्कूल ड्रामा आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच जो फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल, वो हर साल हम मनाते हैं एनएसडी में, दिल्ली में और बाकी सेंटर्स में। इस बार खुशी की बात है कि 40 सेंटर्स जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में बनाया गया, उसमें से एक सेंटर हमारा अरुणाचल को भी चुना है, जिसमें 4-5 नाटकों का मंचन होगा। और ये जैसे कि सर ने बताया 30 तारीख से शुरू होगा पहला नाटक, क्योंकि अरुणाचल में हो रहा है तो पहला नाटक अरुणाचल का एक नाटक से शुरू होगा जिसका नाम है मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी। ये यहाँ अभी हम लोग का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो और कल्चरल सिनारियो को देखते हुए नाटक बनाया हुआ है, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में तो आपको पता चल ही चुका है। तो ये होगा क्लैरिटी के लिए हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हॉल है, डीके हॉल, वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5 बजे। उसके बाद फॉलोड बाय बाकी 3 नाटक जो हमारे हैं वो जैसे सर ने बताया कि एनएसडी से है, तो एनएसडी ने ही इनको वो किया है, रिक्रूट किया है, एनएसडी ने उन्हें एम्पैनल किया है और इन्हें चुना है परफॉर्म करने के लिए। एक नाटक आएगा लखीमपुर से, दूसरा नाटक आएगा बेंगलोर से और तीसरा नाटक आएगा कोलकाता से। उसके बाद आखिरी जो अंतिम परफॉर्मेंस होगा हमारा नाटक होगा वो जो है नांग सिपोंग ताई कम्ती हेरिटेज एंड लिटरेचर सोसाइटी जो है वो परफॉर्म करेंगे 3 तारीख को। वो होगा हमारा डीके कन्वेंशन सेंटर आईजी पार्क ईटानगर में। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो फेस्टिवल जो है भारत रंग महोत्सव जो है 27 ये जनवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि कल से शुरू हो चुका है और ये 20 फरवरी तक चलेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया। और इसमें मैं ये बता दूं और आप लोगों को कि इससे पहले भी आर्ट एंड कल्चर जो है कोलैबोरेट कर चुका है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, लेकिन बीआरएम के साथ नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक नोटिस फेस्टिवल भी होता है
2017 को नोटिस फेस्टिवल का एक सैटेलाइट इवेंट यहाँ भी हुआ था, और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा जो गवर्नमेंट है, अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है वो भारत रंग महोत्सव को भी आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ये यहाँ भी करने का मौका दे रहा है, जिसमें ये बता दूं कि इस फेस्टिवल में ऑल टुगेदर 280 प्लेस 280 नाटकों का मंचन किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। और इस बार जो कोलैबोरेशन हुआ, लास्ट टाइम जब ये आर्ट एंड कल्चर का जो कोलैबोरेशन हुआ था उसमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ने स्पेस प्रोवाइड किया था, लेकिन इस बार आर्ट एंड कल्चर ने बराबरी का हिस्सेदारी निभाया। इसीलिए हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। हमें बहुत खुशी हो रही है। एंड या मेरे तरफ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से मैं आप लोग सभी मीडिया के मेरे दोस्तों को और जितने भी जो अरुणाचल में हमारा ये अगर प्रेस ब्रीफिंग देख रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नाटक का जो फेस्टिवल है जो हो रहा है उसे आप लोग प्लीज़ देखने आइएगा। दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, 30 तारीख को होगा दोरजी कांडू हॉल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद बाकी जो 4 नाटक होंगे वो होगा डीके कन्वेंशन सेंटर में शाम के 5 बजे। आप लोग जरूर नाटक देखने आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हमारे लोकल नाटकों का भी पार्टिसिपेशन चल रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो वी आर रेडी। आउट ऑफ 280 प्लेस में से अरुणाचल का कितना प्लेस है इसमें अरुणाचल रिलेटेड? इसमें अरुणाचल रिलेटेड 2 ही नाटक हैं, 2 नाटक यहाँ हो रहा है वो। और ये नाटक जो है वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ही चुना है, क्योंकि जब कोलैबोरेट करते हैं तो उनको देखना होता है कौन सा नाटक फिजिबल होगा इस जगह के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। और बाकी जो भी भेजा है 3 नाटक भी एनएसडी का ही चूज किया हुआ है इस यहाँ करने के लिए। इसमें ये जो 2 प्लेस है, जो अरुणाचल का 2 प्लेस है, अरुणाचल में सिर्फ होगा, दूसरा स्टेट में भी इसका मंचन होगा ना? नहीं, अरुणाचल में सिर्फ होगा इसका, अरुणाचल में सिर्फ प्ले होगा। एक नाटक को डायरेक्ट किया है रिलिंग ओमले ने, और दूसरा नाटक डायरेक्ट किया है ये पिंतिमांग नामचुंग ने। दूसरा नाटक हमारा प्रॉपर लैंग्वेज भी अपना ही खामती समाज का लैंग्वेज है, विच इज मोर ऑथेंटिक, वही का नाटक वो है। हमारा जो पहला नाटक है जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बनाया गया है, जिसको देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हम खुद को देख रहे हैं, इस तरह का होगा, मॉडर्न प्ले है। सर, जैसे आप लोग अरुणाचल रंग महोत्सव में इस कार्यक्रम में आप जो वर्कशॉप भी रखते हैं, इस बार का जो प्रोग्राम है जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश में भी आज का जो ड्रामा को लेके, एक्टिंग को लेके आगे की ओर इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप लोग अभी जो प्रोग्राम करवाने वाले हैं, इसमें कुछ वर्कशॉप वगैरह रखा है? हाँ, इस बार तो वर्कशॉप का कोई प्रावधान नहीं है। हम जब अरुणाचल रंग महोत्सव करते हैं तब वर्कशॉप्स रखते हैं। इस बार अरुणाचल जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्या है, नाटक कंसंट्रेटेड है। उसके बाद जो वर्कशॉप्स और सेमिनार जितना है वो दिल्ली में होता है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टर्स मीट का हमने रखा है। अगर नाटक खत्म होने के बाद आप अगर आर्टिस्ट से या डायरेक्टर से अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, जो भी प्रेस भी या फिर जो दर्शक भी, तो उनके लिए प्रावधान है। दे कैन कम एंड दे कैन टॉक टू द परफॉर्मर एंड देन डायरेक्टर। या इसके आप पता है क्या का तरफ से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें जो आर्टिस्ट है जो यहाँ का लोकल होगा ना, बाहर से भी यहाँ का लोकल ही है। जो इंडिजिनस प्ले है 2 जो है यहाँ का, एकदम यहाँ का ही लोकल, यहाँ के अरुणाचल के वासी है, और कहानी भी अरुणाचल का ही है। और ये बता दो ताइकमती जो ये जो ग्रुप है वो बहुत ही रिफाइंड ग्रुप है, बहुत ही आर्टिस्टिक। उनका तो अपना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म भी है, तो उससे थोड़ा सा वो करके डिराइव करके बनाया हुआ नाटक है। और उनका अपना कहानी बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, विच इज़ लाइक इंटरनेशनल लेवल में कहूँगा, इस तरह से बनाया हुआ है। और ये नाटक में क्या होता है कि बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए, जो परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं वो लोग भी रहेंगे, देखेंगे। तो एक्चुअली ये कल्चरल एक्सचेंज और आर्टिस्टिक एक्सचेंज, परफॉर्मेंस का एक्सचेंज है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी बेस्ट नाटक, हमारा बेस्ट कहानी उनको बताया जाए, वो भी उनको भी हम देखें और हमारे भी वो देखें। एक आर्टिस्ट के बीच भी एक एक्सचेंज का प्रोग्राम है, इसलिए नाटक का तो होना बहुत ज़रूरी है। ये नाटक हो रहा है तो मुझे लगता है आगे हमारे यहाँ एक, अभी मैं आपको कंटिन्यूटी में बता दूँ, हमारे यहाँ अरुणाचल रंग महोत्सव गवर्नमेंट के स्पॉन्सर करने की वजह से अभी जो है दिल्ली में भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी हम भी बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ से अभी आप हाल ही देखा होगा, बहुत एक्टर्स निकल के आए हैं, चाहे वो OTT में हो, चाहे वो मेनलैंड फीचर फिल्म्स में हो, बॉलीवुड में हो, वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये थिएटर फेस्टिवल और थिएटर जिस तरह से आगे जा रहा है गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि आपको पता है किसी फिल्म में अच्छा एक्टिंग करना है तो आपको यू हैव टू हैव दैट ट्रेनिंग ही आपको अच्छा एक्टर बनाता है और आगे ले जाता है।
लास्ट कुछ सालों से 3-4 साल साइट आप जो अरुणाचल महोत्सव को चला रहे हैं, बहुत सारा आर्टिस्ट को आप देखे जा रहे हैं। अभी का आपका जो ये मैं नजर में है, कितना आर्टिस्ट जो इंटरेस्ट होके, कितना एक्टर जो इंटरेस्ट होके आपके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब आगे जा रहा है, इसमें उनका फ्यूचर कैसे सेट होके जा रहा है? एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीआरएम का है, फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगा क्योंकि थिएटर से रिलेटेड है। अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 स्टूडेंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश से, प्रोफेशनली वो जुड़ने, एक लड़की है 2 लड़का है, वो इसके वजह से ही है। और इससे पहले भी 4-5 लोग जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के पढ़ के आए हैं, वो लोग प्रोफेशनली इसमें थिएटर में और बाकी में काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो हर साल हमारे साथ अरुणाचल रंग महोत्सव के साथ 500 से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उनको हर साल उनको एम्प्लॉय करते हैं हर साल। और थिएटर को मैं हमेशा कहता हूँ, थिएटर नॉट ओनली टू मेक देम एन एक्टर, बट थिएटर से क्या हम कोशिश ये करते हैं, संस्कार देने की कोशिश करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसा बनना है। क्योंकि उसमें नाटक में हम लोग जब करते हैं तो उसमें आप दूसरा का किरदार भी निभाते हो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि दूसरे के नज़र से आप कैसे देखा जाए। आपको अगर चोर का या पुलिस का आपको रोल देंगे तो आप किस तरह से देखेंगे, तो उसको खुद को दूसरे आईने में देखने का, उसको एनालिसिस करने का मौका मिलता है, जिसके वजह से इंसान जो है का व्यू जो है, पेरिफेरल व्यू जो है समाज के लिए, अपने लिए, बाकी के लिए, वो जो अच्छी तरह से उसका खुल जाता है। इसलिए जैसे आप लोग मीडिया के लोग हैं, उसी तरह से मुझे लगता है नाटक भी वो देता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है। एट द सेम टाइम नाटक में क्या है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसमें डांस भी है, लिटरेचर भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें एक्टिंग भी है, इसमें मार्शल आर्ट भी है। तो इसलिए एक कंप्लीट इंसान बनने का एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए नाटक का नॉट ओनली टू बिकम एन एक्टर बट टू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग में हम लोग काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देयर आर लाइक, अगर बोला बाय मतलब इसको पर्टिकुलरली प्रोफेशनल समझ के प्रोफेशन में लेके जाने वाले अभी लगभग 15-20 लोग तो है। दे आर परसुइंग एजुकेशन एंड सम ऑफ देम आर इवन टीचिंग, सम ऑफ देम आर वर्किंग अक्रॉस कंट्री थिएटर के फील्ड में, फिल्म की फिल्म। सर हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ये अपने क्लास में जितना भी स्टूडेंट लोग जाते हैं वो खुद का मजे से जाते हैं, लेकिन जो उसका पेरेंट लोग होता है वो लोग बहुत टाइम ऐसे बोलते हैं कि तो परफॉर्मिंग आर्ट्स करके आते हैं कि कलाकार आके कैसे छोड़ गए। तो आप खुद एक लोगों के लिए मतलब बोल सकते हैं, क्या होना चाहिए कि जो कि अरुणाचल का जो पेरेंट्स लोग हैं या फिर जो यूथ लोगों को आप क्या बता सकते हैं? अभी चीज़ें बदली है, पहले ऐसा होता था स्पोर्ट्स के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ये पेरेंट्स की तरफ से, बाकी की तरफ से इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, मुझे लगता है कि प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे कहते हैं ना, कहावत है, हर इंसान कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता, हर इंसान कोई एक्टर बनने के लिए पैदा होता है। जैसे कि जानवर को हम, जैसे कि हर जानवर को मछली में तैरना सीखो, कहावत है ना, वो मछली की तरह पानी में तैरना सीखो ना। कोई जो है जानवर पेड़ के लिए होता है, कोई जानवर जो है अर्थ के अंदर के लिए, कोई पानी के लिए। उसी तरह इंसान भी अलग अलग वो से ये से पैदा होता है, काबिलियत से पैदा होता है। तो उसको अभी लोग पहचान रहे हैं और मुझे लगता है पेरेंट्स भी अभी मान रहे हैं। उसके बाद अभी क्योंकि OTT निकलने के बाद, मोबाइल निकलने के बाद सब चीज़ ब्लर हो चुका है, उसमें एवरीथिंग। माँ बाप के पास भी इन्फॉर्मेशन है कि आर्ट से कमाया जा सकता है। और NSD के बारे में अभी मैं दोबारा आता हूँ। NSD इज नॉट ओनली इंडिया के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 5 बेस्ट अगर इंस्टीट्यूट के नाम बताया जाए तो NSD में NSD का भी नाम आता है, जिसमें से बहुत दिग्गज कलाकार आए हुए हैं। तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन। और NSD के बारे में अभी तो हर आदमी जानता है, तो माँ बाप भी अभी मुझे लगता है कि दे आर ओपन। बट अरुणाचल में भी आई गेस थिंग्स आर चेंजिंग। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि अरुणाचल का जो कॉलेज वगैरह होगा उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स को डिपार्टमेंट को लाने के लिए आपके इन सब का कोई एक इरादा है आगे का सपना? हाँ, आगे का सपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से भी वो भी चाहते हैं कि यहाँ कुछ अब सेंटर खुले, और हमारा गवर्नमेंट के साथ भी ये बातचीत हो रही है। पहले भी हमने एक प्रपोजल दिया था तो वो कुछ बना था, उसके बाद फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ अपना इंडिपेंडेंट, जैसे कि FTII निकला, उसी तरह से अगर NSD आता है भी ठीक है, या फिर स्टेट का अपना फंडेड अगर एक इंस्टीट्यूशन बनता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आर्ट अभी बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहा है, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ है, आर्ट के लिए खासकर थिएटर के लिए इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए मुझे लगता है। उसके लिए हम बात भी कर रहे हैं और आगे प्रोसेस पे है। ये 4 दिन में 5 दिन 5 दिन में टोटल कितना प्लेस होगा? और इसमें 5 दिन में 5 प्लेस होंगे। 5 प्लेस? हाँ, 5 प्लेस होंगे। फॉरेन कंट्री से कितना है? फॉरेन से नहीं आएंगे, एक आएगा ये कर्नाटका से, एक आएगा एक ग्रुप आएगा कर्नाटका से, एक ग्रुप आएगा ये असम से, और एक ग्रुप आएगा वेस्ट बंगाल से। तो लगभग बाहर से आने वाले लोग टोटल, अगर इसमें फुटबॉल अगर खासकर परफॉर्मर्स का बोलूँ तो लगभग 200 के जैसे लोग आएंगे यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले, हमारा इंक्लूडिंग आवर इंडिजिनस परफॉर्मर्स।